Shanti. Good evening to all the viewers. Today's participant evaluation. This is a demo counseling by the students of counseling as teacher. Case for today's webinar is friendly faces, hidden motives. Counselor for today's webinar is Sister Prachi Manhas. Like to give a brief introduction about today's counselor. Sister Prachi Manhas is a dedicated spiritual counselor, founder counseling skills to next level, available to anyone amid the tranquility of ups and downs level. So Prachi Manhas has got a master's in counseling and spiritual health. Besides that, she has got a master's in computer application, also very actively participating as a spiritual counselor for the last about 6 months. With her in supportive role, we have Sister Rakhi Mehra. Sister Rakhi Mehra ji is from the education sector. Got a master's in counseling and spiritual health, participating as a spiritual counselor for the last 3 years very successfully, and has created more than 200 videos so far. Today's session will be live on YouTube as well as it will be uploaded on the Facebook. We accept any kind of counseling and respect for relationship issues. We ask candidates towards the filling of free counseling forms from a website named as Digital Counselor for Relationship Issues. Also, we can be contacted on number 9321070078. Request our viewers to like, share, and subscribe our YouTube channel for themselves and to their friends, and we'll be very happy if they can be with us for this session from the beginning to end. With the remembrance of beloved Shri Baba, who is our Supreme Father, Supreme Teacher, Supreme Sadguru, and Supreme Counselor also. We also seek the blessing from our most loving Dadis and from senior brothers and sisters. May I invite today's counselor, Sir Prachi Manhas, to start today's session. Thank you very much, Osha. Good evening, everyone. My name is Prachi, and today's topic is conspiracy. So, in the today's session, we are going to discuss about the how thefting happen in the bus and how the mindset of the people change after happening of this thefting, and which causes lot of disturbance in the mind. So, सबसे पहले तो हम परमात्मा का शुक्रिया करते हैं कि ये जो भी सेशन हम करेंगे स्टार्ट इससे पहले, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे आजकल किस तरह से चोरियों का जो जोर है वो बढ़ रहा है, और उसकी वजह से किस तरह से इंसान एक जो होता है उसका कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चला जाता है कि वो एक स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहता, कि वो शॉक में चला जाता है, और उसको उसकी वजह से एंग्जाइटी भी होती है, डिस्टर्बेंस इन स्लीपिंग भी होती है, और वो कभी कभी इतना डर जाता है अंदर से कि उसको डिस्कस करने के लिए काउंसलर की जरूरत पड़ती है। तो हम आज डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो आ, मैं बुलाना चाहती हूँ राखी सिस्टर को। नमस्ते मैम, मेरा नाम रेनू है। मैंने आपसे नमस्ते अपॉइंटमेंट जी। हाँ, मैंने नमस्ते। फोन पे बात करी थी आपसे। हाँ जी, हाँ जी, आपने डिस्कस किया था कि अपना आपका कुछ डॉक्यूमेंट एंड लैपटॉप हाँ चोरी हो गया जी, और आप काफी डिस्टर्ब है। हाँ जी, आप बताइए क्या हुआ था एग्जैक्टली। मैम मैं ना ये जॉब मैं जॉब करती हूँ, तो मैं ना जा रही थी, तो बस में बैठी हुई थी, तो मुझे ना ये सीट नहीं मिली। तो वहां पे जब मैंने देखा कि ये जो एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए हैं ड्राइविंग सीट इधर बस में, तो मुझे हुआ कि जब जहाँ पे लड़का बैठा, तो मैंने बोला ये तो लेडीज सीट है, आपको यहाँ से उठना पड़ेगा, तो मुझे बैठने दो। वो कहता है क्यों, ये मेरी मर्जी, मैं क्यों उठूं यहाँ से। इस तरह से बहस होगी हम दोनों के बीच में ना। तो कहते हैं ये नहीं उठूंगा। तो फिर ना इसी दौरान जो है कि लड़का
मैं फिर वो कहता कि अगर यहाँ पे आप बैठ नहीं सकते हो, अगर आपको बैठना पड़ेगा तो बाकी बहस बस आएगी होने के बाद फिर लोग भी बीच में होने वाले कि बैठने तो ये लेडी है, क्यों नहीं बैठने दे रहे हो। तो फिर वो कहता कि अच्छा आपको अगर बैठना, ये सीट गिल्ली है तो यहाँ पे आपको कुछ रखना पड़ेगा नीचे बैठने के लिए, तो आपके पास है वो। तो मैंने बोला हाँ है मेरे पास। तो उसने ना मुझे ना बैठने के लिए बोल तो दिया, तो मैं बैठ तो गई। हम्म। बट ना वो उसने ना मुझे जब जैसे मैं बैठी उसने मैं थप्पड़ मारा, और मैं ना बैग अपना दे के ना जहाँ पे जो लड़की बैठी हुई थी, तो जिस लड़का जहाँ से जब उठा तो लड़की भी थी उसके साथ। तो मैंने ना बोला ये आप ना ये रखो, मैं उसके पीछे अभी मैं उसको पकड़ के लाती हूँ, बताती हूँ उसको मजा है कि उसने मुझे थप्पड़ मारा क्यों। तो फिर ना ये मगर वो लड़का तो जो था हाथ आया नहीं, तो मेरी गाड़ी भी फिर वो निकले जा रही, तो मेरा फिर मैं गाड़ी में बैठी, तो जब मैं गाड़ी में अंदर आती हूँ देखती हूँ लड़की भी नहीं और मेरा बैग भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स उसमें सब कुछ था मेरा पड़ा हुआ। उसमें मेरे पास ओके। कैश भी था और मेरे ना लैपटॉप भी था। तो मैं ये ऐसे तो मैं प्राइवेट गाड़ी गाड़ी करा के जाती थी, ये फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा हो गया कि मैं चलो यहाँ से गाड़ी से जाती हूँ मैं। तो ये नहीं पता था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने ना ये मैंने एप्लीकेशन कहीं और दी हुई थी जॉब करने के लिए कि चलो मेरे को ये कहीं मैंने देखा था कि यहाँ पे स्कोप है, अच्छा सैलरी पैकेज है, तो मैंने उसके लिए मैंने ना डॉक्यूमेंट्स ये मैंने यहाँ पर्स में ही रख लिए हुए थे। और लैपटॉप भी था हम्म। मेरा, उसमें कैश भी था कि चलो भाई कैश इसके लिए कि मैं और भी बिजनेस करती हूँ, तो मुझे था कि मुझे किसी ने पैसे दिए, तो मैंने पर्स में रख लिए कि चलो भाई अब घर जाऊंगी तो मैं ये रख दूंगी। अब देखो काम जो वर्किंग करता हो तो उसके पास कैश होता ही है। तो मगर मुझे आपके पास सच में मैं समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। तो उसी तरह जो दौरान मैं यूट्यूब पे ना आपको मैं सेशन देखती हूँ, फेसबुक पे देखती हूँ आपके सेशंस, तो आपने ना कई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी है, तो मुझे भी फिर ऐसा हुआ, तो मैंने देखा आप तो मेरे ही आसपास एरिया में रहते हो, तो मैंने आपसे कांटेक्ट करा कि भाई प्लीज मैडम मेरी हेल्प करें, तो आपने मुझे अपॉइंटमेंट दी, तभी मैं आपके पास आई ओके। हूँ कि मैं इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो मैंने उम्मीद ही खो दी थी। बट ये है कि जब आपके ये देखा ना काउंसलिंग क्या होती है, क्योंकि डॉक्टर के पास भी अगर मैं जैसे होता है ना कि सिर भारी सा से लग रहा था कि क्या करूं, कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने ऐसे उम्मीद छोड़ दी थी। मगर नींद भी नहीं आ रही थी कि मैं डॉक्यूमेंट्स मिले, भगवान जी को याद करूं, भगवान जी मेरे डॉक्यूमेंट्स दे दो, भगवान जी मेरे डॉक्यूमेंट्स दे दो, तो कहीं से मिल जाए ऐसे ऐसे बोल के। मगर फिर एक उम्मीद आप ही जागे कि लिखा हुआ था कि मन में जो कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम दुविधा चल रही हो तो कांटेक्ट करें। मुझे ऐसा लगा कि हाँ जी। आप आपसे कांटेक्ट किया जाए, तो मुझे आप ही उम्मीद ठीक किया बन के आपने। आए हो मेरे लिए। आपने बिल्कुल ठीक किया, सही डिसीजन लिया। क्योंकि कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि हमें किसी से बात करने से उसका सोल्यूशन मिलता है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआर किया हाँ कोई वो तो मैंने कर पुलिस में? दिया था, क्योंकि मेरा लैपटॉप का भी सवाल है, कैश भी है, ओके। डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला डॉक्यूमेंट्स मेरे, क्योंकि ढूंढ के दिखा दो मुझे, तो मुझे ये चाहिए हाँ, ही चाहिए। डोंट वरी, आजकल बसेस में भी कैमरास होते हैं। साथ में जहाँ स्टॉप पे उतरे वहां पे भी होंगे कैमरास वगैरह, तो फुटेज वगैरह ली होगी पुलिस वालों ने वहां से, वो अब अपनी सीसीटीवी कार्रवाई फुटेज। कर रहे हैं, मैंने तो उन पर ही छोड़ा हुआ, मैंने तो दोबारा मैंने उनके पास गई नहीं हूँ। कितने डेज हो तो गए इस इंसिडेंट को हुए? अभी ये आज दूसरा दिन है, कल का इंसिडेंट हुआ तो ये आज दूसरा दिन है, तो मेरे को बस यही हो रहा था। और घर पे भी मैंने बताया ऐसे हो चुका है, तो ना फिर ऐसे ही करते करते सारे बोलने लगे कि डॉक्यूमेंट्स तेरे जरूरी हैं, उसमें आधार कार्ड वगैरह मेरे
जो मेरे एक्सपीरियंस, मेरे डॉक्यूमेंट्स, जो मेरे स्टडी रिलेटेड जो मैंने पढ़ी हुई है, एकेडमी की मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, क्योंकि उसमें वो चाहिए होता है ना, 12th हाँ पास, जी, हाँ जी। ग्रेजुएशन पास, एमएससी पास, ये कुछ इस तरह। वो मैंने सारे रख लिए थे, ओरिजिनल भी रखे हुए थे, क्योंकि ये मैंने ओके। रिज्यूम बनाया हुआ था कि इसमें ना ये आपको चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आ रही मेरे को, मेरा जॉब का सवाल है कि मेरे को था कि जॉब मिल जाएगी, जॉब के सिलसिले में करते करते मेरे डॉक्यूमेंट्स भी गायब हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, आप अपने मन को सबसे पहले समझाइए कि जो हुआ, जो भी हो गया वो तो मेरे हाथ में नहीं था। अब जो मेरे हाथ में है वो है मेरी सोच, मेरी जो हम्म। थॉट्स है, जो मेरे ऐसे थॉट्स चल रहे हैं, आप उसको एक उसको विराम दीजिए और अपने मन में ऐसे विजुलाइज कीजिए कि हम्म। जब आप मॉर्निंग में उठते हो, रात को सोते हो, आप ये सोचिए कि वो जो भी है उनसे आप तहे दिल से माफी मांगो कि मेरी पिछला कोई मेरा है इनके साथ कार्मिक अकाउंट, जिस वजह से आया है, इन्होंने मेरे को ये तकलीफ दी। तो आप ये देखिए, ये विजुलाइज कीजिए कि मेरे मेरे पास वो आ रहे हैं और मेरा सारा जो है वो पकड़े गए हैं पुलिस के थ्रू, हम्म। और वो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेफ है, और मुझे सब कुछ अपना मटेरियल, सब कुछ जो भी है मेरा मिल गया है। अब बार बार अपने हम्म। अंदर ये विजुलाइजेशन कीजिए और अपने अंदर ये अफर्मेशन कीजिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 7 टाइम्स कीजिए, 21 टाइम्स कीजिए, 108 टाइम्स कीजिए। बाकी जब आपके अंदर थॉट्स चलते हैं आप ये कीजिए, और कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि आजकल पकड़ना किसी को इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आजकल हर जगह पे ये होते हैं कैमराज एंड ऑल। तो और आपने भी अब स्केच वगैरह भी वो निकाल सकते हैं उस चीज का बनाकर। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप अपने मन को शांत कीजिए इस चीज में ना। और बार बार सुबह उठते हो मॉर्निंग में, तो आप उनको विजुलाइज करके, आपको तो उनके चेहरे भी याद है अच्छी तरह, विजुलाइज करके ये थॉट कीजिए कि वो पकड़े गए हैं और वो मेरे डॉक्यूमेंट्स को मेरे को दे रहे हैं, हैंड ओवर कर रहे हैं। अगर आप ऐसे हम्म। करेंगे आस्ते 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 आस्ते, देखना आपको आपको कैसे रिलैक्सेशन होगी, और आपको कानून पे भी थोड़ा सा रखना पड़ेगा बिलीव। आप लेते रहिए उनसे जो भी है, फीडबैक लेती रहिए टाइम टू टाइम कि क्या कहाँ तक पहुंची है कार्रवाई। और अपने मन को स्टेबल रखिए, जितना आप स्टेबल रखोगे उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि जो हम सोचते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस हमारे इन्वायरमेंट में जाती है और वैसे ही चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं वही चीजें हमारे आगे पीछे होने लगती हैं जो हम सोचते हैं। तो आप क्या करो, अपने मन को शांत करो, और अपने मन को शांत करना इस समय बहुत टफ है, आसान नहीं है, लेकिन आपको थॉट्स जो चल रहे हैं ना उसकी जगह कोई और थॉट्स लीजिए, जैसे मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, और वो जो भी है वो मेरे डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल सेफली मुझे हैंड ओवर करेंगे, करेंगे ही करेंगे। और ये आप थॉट बार बार कीजिए, दिन भर कीजिए, और अगर आपको ज्यादा टेंशन होती है आप लिखिए, ऐसे एक खत टाइप लिखकर उसको जला दीजिए या फाड़ दीजिए, जो भी नेगेटिविटी है वो आपकी इसके थ्रू निकल जाएगी। और आस्ता आस्ता देखना आपका मन भी शांत होता जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हो, अगर आपको कोई पता नहीं है और कुछ हो रहा है आपको, जैसे कुछ नींद नहीं आती या कुछ बेचैनी। हाँ, बस ये यही मन जैसे कि हो रहा है कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स, मुझे मेरा ध्यान ना उधर ही जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि देखो, लैपटॉप भी मैंने बड़ी ही की के रखा लिया था कि भाई मुझे लैपटॉप मैंने अभी लिया हुआ था, उसमें सारा कुछ मेरा सेव किया हुआ मैंने। तो फिर अब कहाँ से ये सारा कुछ आया था ना, आजकल आपको पता ही है, सब कुछ जो हाँ है जी, हाँ लैपटॉप जी, वो में तो हम है ही, काम कर। आजकल एक ही जगह सब कुछ है। वो तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, आप टेंशन नहीं लीजिए, आजकल बड़ा कुछ है, लैपटॉप्स भी ट्रैक हो जाते हैं, हर चीज ट्रैक हो जाती है। क्या आजकल कोई बड़ी वो नहीं है ये कि किसी को करना, देखना 1-2 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएगा, बस आप अपने आप को पॉजिटिव रखो। ठीक है, तो आप मुझसे कंसल्ट करना विद इन वीक। ठीक है, देखना, मैं मेक श्योर करती हूँ कि आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। आप ये प्रैक्टिस जारी रखिए, और आप अपने आप को जितना हो सके थोड़ा परमात्मा को समर्पित कीजिए कि ये जो हुआ वो मेरे हम्म। अपने कार्मिक अकाउंट से, और अब मैं आपको दे रही हूँ ये प्रॉब्लम को, आप फिर देखना वो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप अभी जी। अपने मन को थोड़ा सा इन्हीं चीजों से शांत कीजिए। ठीक है, और पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, कुछ पॉजिटिव चीजें पढ़िए,
पॉजिटिविटी में रहिए। कुछ मतलब कि जैसे अगर आपको लग रहा है कुछ अच्छी वीडियोस देखनी है मोटिवेशनल, या यहाँ से आपको लगता है पॉजिटिव कंटेंट आपको रिसीव हो रहा है, वहां पे वो बात की। हम्म। कोई अगर आपके साथ नेगेटिव बोलेगा ना इस समय, तो आपको और नेगेटिविटी का फीलिंग हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव है। ठीक है, कम से कम हम्म। लोगों से डिस्कस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने जो करीबी है उनसे, और अपने जो पुलिस है, जो आपके कानून है उससे फीडबैक बेसिस पे आप बात कीजिए, और उनकी हेल्प कीजिए कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हुआ था। पूरा उनको अपना एक्सप्लेन कीजिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस टाइम पे, और उनका रूप रेखा कैसी थी, क्या किस तरह के उन्होंने कपड़े पहने थे, कैसी उनकी शक्लें थी। तो वो आपको हेल्प करेंगे आगे कानून आपकी। ठीक है, जी। आप मुझे हफ्ते जी। के बाद कंसल्ट करना, देखना होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन केस अगर आपको लग रहा है कोई डिप्रेशन है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे कॉल पे भी कांटेक्ट कर लेना विद इन वीक। ठीक है, जी। थैंक यू और मैम, कोई आपसे प्रॉब्लम? मिलके ना मन हल्का हुआ कि हम्म। ये ना मिल जाएगा। मुझे ना ऐसे लग रहा, होप आ गई है कि मिल जाएगा। और आपने जो बताया कि पुलिस वाला भी जो है वो भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर मुझे थोड़ा हुआ कि हाँ भाई, मैंने ये सोचा नहीं कि पुलिस को मैंने बता दिया था एक बार, मगर अब मैं जाऊंगी उनसे कंसर्न करूंगी, पता करूंगी। उन्होंने भी मेरा नंबर लिया हुआ, ऐसा नहीं है। तो वो भी कुछ होगा तो मुझे कांटेक्ट करेंगे। तो मुझे ना होप दिख रही है सच में। अब मैं जो आपने मुझे बताया, मैं वो भी एक्टिविटीज करूंगी, क्योंकि जिससे कि मेरे सब कुछ वापस आ जाए। थैंक यू मैम। ओके, ओके। ठीक है, बाय, टेक केयर। अब हम मिलेंगे इनसे एक हफ्ते के बाद, देखेंगे क्या इनका रिजल्ट रहा, क्योंकि जब हमारी कोई सिचुएशन नेगेटिव होती है ना, तो हमें हर चीज नेगेटिव ही एक्सपीरियंस होता है, तो उसमें हमें अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ऐसी एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहिए जो हमें पॉजिटिविटी प्रोवाइड करे, और हमारा उन लोगों से वार्तालाप होना चाहिए जो हमें एक पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करे। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आया। भेज दीजिए रेनू जी को अंदर। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्कार, कैसे? क्या हाल है आपका? बस ठीक हूँ मैम। बड़ा अच्छा लग रहा है सच में। आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, उस दिन तो बहुत टेंशन थी आपको। हाँ वही ना, ये मैंने कहा ना, यहाँ से मैं गई हूँ तो ऐसे लगा कि मिरेकल्स ही हो गया। और मैं भूल ही गई हुई थी ना, जैसे मैंने पुलिस से कांटेक्टिंग किया, मैंने बोला क्या अब ये कहाँ पुलिस वाले ये काम करेंगे हाँ 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 कि, हाँ। मगर उन्होंने बड़ी हेल्प करी। तो ये ना चौथे दिन जाके ना ये चोर को पकड़ लिया। हम्म। और उसके पास डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे सारे सेव डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल गए। लैपटॉप भी मिल गया मेरा। और कैश भी, चलो मैं कैश का नहीं मुझे था, मगर फिर भी जो भी था सामान मेरे को मिल गया। चलो पैसे उन्होंने कुछ खर्च किए होंगे जैसे। तो मेरे को लैपटॉप जरा था, डॉक्यूमेंट सब कुछ सेफ है मेरा वैसे। तो ओके। फिर बाकी, क्योंकि ये जब आपने मुझे बोला था ना कि साथ में विजुअलाइजेशन करना, ये ऐसे कार्मिक अकाउंट कुछ इस तरह से ना, फिर हाँ आपने जी हाँ जी। व्हाट्सएप पे भी मुझे हैरानगी हुई, ये क्या कार्मिक अकाउंट होता है, ये क्या होता है। फिर आपने मेरे साथ रहे हो तो मेरे को तब जाके मन हल्का हुआ कि ये ऐसे ऐसे करते हैं। नहीं तो मैंने तो ऐसे, जब मैं यहाँ से गई थी मुझे हुआ ये पता नहीं क्या है, मगर आप मेरे साथ, आपने मुझे वो व्हाट्सएप पे मुझे सब कुछ बताते थे, इस तरह से करो इस तरह से। फिर आपने मुझे सुबह भी जब बोला था, एक आपका ग्रुप है कि जो जल्दी उठने का, तो फिर आपने मुझे भी उसमें ऐड कर लिया था, तो फिर मैं उसमें भी उठी। उसकी वजह से ना मैं ये विजुअलाइजेशन कर पाई कि क्या होता है, क्योंकि आपकी जो क्लासेस चलती है ना, वो मुझे हम्म। बड़ी ही अच्छी लगी, तो उसकी वजह से सारा कुछ हो पाया ये। तो जिससे कि मेरी जॉब में कि ना हुआ कि हाँ भाई, मेरे मैं है ही मेरी जिंदगी डॉक्यूमेंट से। तो मैं डॉक्यूमेंट्स के बगैर तो कुछ कर नहीं सकती थी। तो अब मुझे जी बिल्कुल। होप लग रही है, और मेरे को जॉब अच्छी से मिलेगी, पैकेज अच्छे पैकेज वाली। चलो तो थैंक यू होपफुली। सो मच मैम। हाँ और जी। आप इससे एक फिर मुझे ना अब, पहले होता था कि एक तो आपने मुझे विश्वास करना भी सिखाया, भगवान पे पक्का विश्वास होना चाहिए। तो उसके बिना पे मैं ना ये काम कर पाई हूँ। नहीं तो मुझे था कि
भगवान जी ये आपने क्या किया, बस ऐसे ही बोलती रही भगवान जी ये क्या किया, ये क्या किया। तो मगर अब ये हुआ कि सच में आपने मुझे बोला कि नहीं, ये जो भगवान अपने घर में पूजा पाठ भी करना होता है। तो अब मैं रोज, आपने मुझे बोला था मंत्र भी, ओम मंत्र मैं लेती हूँ अब, उसको हम्म, चैंट करती हूँ। तो मुझे ना अच्छा लगता है अब ना। और मेरे काम भी सारे अब ना हल्के से हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं सच में। नहीं तो पहले ना मुझे ऐसे होता था कि ये ना, ये सारे काम मैंने करने हैं, ऐसे होता था। मगर जो आपकी क्लासेस ले रही हो ना, उसमें सच में जो आप बता रहे हो ना, वो बड़ी अच्छी क्लासेस हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलो, आगे भी आपको ये चीजें हेल्प करें। और अगर आप जी अच्छे संग में रहे, अच्छी कनेक्टिविटी में रहे, अच्छे लोगों के बीच में रहो, तो आपको देखना हर चीज का सोल्यूशन इजीली मिल जाएगा। जी ठीक है। जी। अपना ऑरा पॉजिटिव रखने की जिम्मेवारी हर एक इंसान की खुद की होती है। तो वो आपने हम्म खुद ही चूज करना है, आपने किस किस सेट ऑफ पीपल के साथ रहना है। ठीक है। हम्म। चलो, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच। मच मैम, मैं मुझे को कहना टेक केयर। चाहिए। ठीक है, हाँ आप ना जी। मुझे अपनी क्लासेस में ना ज्वाइन कर लो। और जो आपने फीस बोली थी वो मैं पेड कर दूंगी। आपके वो पेड वाले सेशन चलते हैं ना, जो हाँ क्लासेस जी, हाँ जी। मॉर्निंग वाली 5 बजे वाली, तो मुझे उसमें ऐड कर लो। ठीक है, थैंक यू सो ओके, मच। ओके, नो इश्यूज। बाय बाय, वेलकम, थैंक वेलकम, टेक केयर, बाय। यू। ओके ओके, बाय। बाय। हैंड ओवर टू अनिल भाई जी। हैंड ओवर टू अनिल भाई जी। ओवर टू अन बाई जी। Thank you very much, Sister Prachi Manaji, learner counselor for today's case and cases. If you don't notice, constantly the adult girl approach our counselor stating that she was traveling by the public transport bus while she has to go for appearing the interview and was carrying laptop, personal documents, and money in her bag. So she was in her own thoughts. And in the bus, she found that a boy was sitting in the lady seat. Most of the seats were occupied. So she approached the boy who was on the lady seat to please stand up so that she can sit on the seat. But after a few requests, the boy was hesitant to get up and allow her to sit on the seat. But due to the intervention of another girl who was seated next to him, she also requested the boy to give the seat to this young girl as she was carrying a heavy bag in which she was also having a laptop. But after hard negotiations with a lot of argument, the boy gently agreed to get up from the seat and allow this young girl to sit. But after a few minutes, this young girl was slapped by the boy. Immediately after slapping her, he ran away towards the gate
and she ran after him to catch him, but luckily he jumped from the bus as the bus has stopped on the signal. And as the girl was coming back on her seat, she saw that the same girl who had taken her side and has also approached the boy to vacate the seat. She was carrying her bag and she also jumped from the bus immediately. It was to her shock that the girl who was there on her side, she could deceive her and rob her bag. She was in a big shock, though she wanted to get down from the bus, but the bus was in motion. So she had to control herself, and people came to help her, but she didn't have any chance. And this way, she lost her bag to these two thugs. And this was a post traumatic stress disorder for which now she has approached a counselor that how she can control her anxiety, post-traumatic stress disorder, and the behavior under which and the shock which she's undergoing. So after listening to her case, the counselor has suggested that now whatever has happened to her is really something which is unbelievable. Generally, people travel in the public transport buses thinking of it that it may be safer than for the girls because buses are supposed to be more safe and people will be there to help them in case of any theft or any undesirable social elements. So there are a few suggestions the counselor has given, and hopefully the suggestions followed by her workable, and she really was able to recover her back. But before that, I'd like to say about this counselor who has definitely understood the problem and made her to become positive and trust whatever has happened was unavoidable. But after this incident, by remaining positive, concentrating on our positive thoughts with the proper meditation, journalizing the entire event right from the beginning to end, eating properly and sleeping at least 6 to 8 hours, and then believing in herself that whatever will happen will definitely will be good for her. And also she was suggested to approach the
local law authorities and also take the help of the camera which was installed in the bus. So with few exercise, she was made to come back to her senses and remain stable. Emotionally, she was also drained, and physically also she was burned. So with all the therapies, police was able to get the clue from the all the description of the case which was going on in the bus, and the culprit was brought back to the police station and handed over. And her documents, which was urgently required for the interview, were also recovered. And the belief which she had lost was also restored, that those who help themselves would also help them. So with all these therapies, visualization, affirmation, and making herself stable in this emotionally and physically help her to recover. And she came back to her senses and also could appear for her interview, which was rescheduled due to her application. Not only she was able to overcome this trauma, but also was made to believe in herself that not only the counseling, but active interference and action can definitely bring our problems, which no matter how serious or the situation may be adversely, but remaining strong in the adverse circumstances can make us strong. Um, it gives us also to restore our faith in the higher, because people who remain stable and trust in God can remain stable, can definitely achieve and the trust of people by traveling in the buses is also restored with the proper counseling and with the therapies and believing in the spirituality also. The session was there to create the awareness that nowadays we have to be very alert, very careful, and keep our belongings to us and don't judge people on the face value, but make sure that you take care of all the belongings and keep a watch on the people around. You don't know that in friendly faces who is there to help you and who is there to love. So the session was there live on YouTube, as well as uploaded on the Facebook, and we accept any kind of counseling in respect of relationship issues, and we ask any developing the free counseling form on the website as digital counselor for relationship issues, and we can be also contacted our number 932107007. Special thanks to Sister Prachi Maharaji, Learner Constable today, and the Constable Raku Maharaji. Request Raku Maharaji to join the session again for 5 minutes to the viewers. Thank you very much, Session Constable. Om Shanti.